चलो मैं आपको ओवरऑल ब्रीफ दे देता हूँ चैप्टर के बारे में, ठीक है। सो दिस चैप्टर विल फर्स्ट डिस्कस अबाउट हाउ द चैप्टर हैज इवॉल्व्ड, ठीक है। मतलब जो ग्रेविटेशन का कॉन्सेप्ट है ये इवॉल्व कैसे हुआ है, ठीक है। बिफोर वे बैक जो है एरिस्टोटल और टॉलमी है ना, व्हाट थ्योरीज दे हैव गिवन रिलेटेड टू द सोलर सिस्टम, हाउ द geocentric model was working, and then we'll discuss about heliocentric model where the sun was at the center, and then the Kepler's law came. From the Kepler's law, Newton derived the formula for gravitation, you know. Newton was the one who proposed that anything in this universe which has got mass will attract everything in the universe which has got mass, ठीक है। तो अगर दो बॉडीज का कुछ मास है देन दे विल अट्रैक्ट ईच अदर, दैट वाज न्यूटन्स लॉ फॉर ग्रेविटेशन, ठीक है। दिस वाज समथिंग वेरी यूनिक which was proposed by Newton way back then, and then he gave the formula also what will be the force by which they will be attracting each other, है ना। जो हमारी जो बॉडीज हैं वो किस फोर्स से एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगी। तो हमने जो फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था मोशन का, मोशन के फर्स्ट चैप्टर में हमने क्या पढ़ा था कि दैट इफ अ बॉडी इज एक्सेलरेटिंग, अगर कोई बॉडी एक्सेलरेट कर रही है, ठीक है, तो इस एक्सेलरेशन से रिलेटेड हाउ मच डिस्टेंस द बॉडी विल कवर in a particular time or what will be its final velocity, है ना। this all we have studied, जहां पर हमने 5 वेरिएबल की बात की थी u v a s t। ये हमारा फर्स्ट चैप्टर था मोशन का। सेकेंड चैप्टर में हमने क्या पढ़ा कि इफ समथिंग इज एक्सेलरेटिंग दैट मीन्स डेफिनेटली सम फोर्स इज बीइंग अप्लाइड ऑन द बॉडी। तो सेकेंड चैप्टर में हमें फोर्स गिवन था बेटा, है ना, कि लेट्स से बॉडी का मास जो है वो 5 kg है और फोर्स ऑन बॉडी इज 10 न्यूटन, एंड फ्रॉम देयर यू विल कैलकुलेटिंग द एक्सेलरेशन इज 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। So that's in the second chapter whereby force is given and then you are finding how much will be the acceleration. In this third chapter, that's in gravitation, this force is what we are calculating. ये force जो आपका contact force नहीं है, अब किसी भी body पर जो आप force लगा रहे हैं वो non contact force है because of force of gravitation। तो कितना force लगेगा, अगर वो कितना force लगेगा वो calculate कर लिया हमने, तो फिर उसके बाद mass into acceleration से compare करेंगे, so you will get acceleration. Once you will get acceleration then you can do calculation for motion, ठीक है। सो ये जो ग्रेविटेशन का जो चैप्टर है इसमें विल बी डिस्कसिंग अबाउट हाउ मच इज द फोर्स बिटवीन द टू बॉडी बिकॉज ऑफ द मास। ओके, चलो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। सो देयर आर टू मॉडल्स ऑफ यूनिवर्स, है ना, बिफोर वे अहेड 15th सेंचुरी से पहले, है ना, दैट वाज बिफोर Copernicus, the model which was there was of geocentric, ठीक है। they were all observing, है ना, think about 15th century में they were seeing the sky, they were seeing moon was there or different planets were there, stars were there, and they were wondering about, you know, how exactly they are moving around. And then your Aristotle and Ptolemy, they came up with geocentric model. They said earth is at the center of universe, everything is revolving around the earth, ठीक है। तो अर्थ के अराउंड पर बाकी सारी चीजें रिवॉल्व कर रही हैं, सब प्लैनेट्स इंक्लूडिंग सन आल्सो। दैट वाज जियोसेंट्रिक मॉडल। जस्ट राइट डाउन द टर्म जियोसेंट्रिक, दैट इज अर्थ इज एट द सेंटर, this was proposed by Aristotle and Ptolemy. Second is heliocentric, that is helio is word for sun, so sun is at the center.
First one to propose was Copernicus. सो वे बैक 15th सेंचुरी में बेटा चर्च जो है वो बहुत पावरफुल था, तो चर्च ने अगर कुछ बात अपनी रखी है तो दैट वाज टेकन एज अ वर्ड ऑफ गॉड एंड दैट वाज टेकन अनडिस्प्यूटेड ट्रूथ. सो कोई भी चर्च के अगेंस्ट में जो है कोई थ्योरीज या प्रपोजल नहीं दे सकता था. सो दैट टाइम Copernicus, he came out with his heliocentric theory, and that was justifying or proving lot of observations, but he published it in form of a book. जो बुक के फॉर्म में उसने पब्लिश किया, तो दैट he retained it with himself. No, he was not having courage to go against the church. So this book or the theory of Copernicus was promoted by anyone. It was promoted by whom? Galileo Galileo Galilei. Very good. It was by Galileo Galilei. Just note it down. Now Galileo was also, very respected member of the society because of lot of observations he had made. Galileo was known as, is in fact called now as father of modern science. Father of modern science. But church was very upset because of the observations made by Galileo. So church set up a committee, and that committee said that no, geocentric model is valid, heliocentric is not valid, and he was put on house arrest till his death. So 10 years he was house arrested. But it was because of this incident, Galileo promoted it, he was being house arrested, that made this theory of heliocentric more famous. People started exploring about this heliocentric theory, that the sun is at the center. Okay? And Galileo has not just promoted it, he promoted or backed it up with his own observations. So what, 1 minute. So what Galileo did was he made his own telescope. Okay? He made a powerful telescope. And he made few observations. Anyone, what observations he made? Jupiter. Jupiter. Okay, he observed that Jupiter Saturn has got its own moons. Okay? Now, this thing was, in conflict with Aristotle theory, where he said everything in the heaven move around the earth. Then he said that no, everything doesn't move around the earth. See, these bodies are there, they are moving around the Jupiter. Okay? Second was he found there were Saturn ring. Saturn rings were there. Okay? Saturn rings में he was the first one to observe Saturn rings, and then he found that everything is not perfect. Aristotle said heavenly bodies, all the things are perfect. Okay? This was Aristotle. He said all heavenly bodies are perfect. Okay? This thing was falsified. कैसे falsify हुआ? Third, he observed that sun has got spots. Fourth, he observed that moon has got craters. So these things are proving that all heavenly bodies are not perfect, which was proposed by Aristotle. Okay? And on top of all this, he observed that Venus has phases. Okay? Like moon. Okay? Moon की तरह Venus के भी जो है phase है. That's it's becoming crescent.
This was स्पॉट का क्या मतलब? बेटा सन के ऊपर स्पॉट्स होते हैं. सन जो है उसका जो सरफेस टेम्परेचर है दैट 6000 डिग्री सेल्सियस, बट दैट टेम्परेचर इज नॉट यूनिफॉर्म एवरीवेयर. सो सम प्लेसेस वेयर द टेम्परेचर इज लेस दैट अपीयर्स एज अ स्पॉट. ठीक है, ये जो सन स्पॉट्स हैं ये इनकी शेप जो है वो चेंज होती रहती है. तो बिफोर Galileo made the observation, it was like, these are, some bodies between the जो आपका Helios Earth geocentric model था. This is Earth is there. Then they said this is Mercury, Venus, and then the Sun was placed. So they said कि between Earth and Sun, somewhere here some heavenly bodies are there which appears at sunspot. But then Galileo observed these sunspots are changing their shape, they are changing their location, and these spots are not some heavenly body between the Venus and Sun. These are the spots on the sun surface. Then later on, after few centuries, they made out these sunspots are actually the areas of low temperature, which appears as a sunspot. Okay, so he observed Venus has phases, and from this, that Venus has phase, that was giving a proof that the heliocentric model is more valid. तो सर जब वो होम अरेस्टेड था तब उसने ये सारी चीजें डिस्कवर करी घर पे बैठ के? नहीं, जब उसने ये सारी चीजें डिस्कवर ऑब्जर्व की उसके बाद जो है उसने कोपरनिकस की थ्योरी को दुनिया के सामने जो है ही ब्रॉट इट विद दिस प्रूफ that see these are the proof why Aristotle was wrong, and this fifth one that Venus has got phases, that's a proof why heliocentric model is more justified or more acceptable. Now when he started this propaganda, he started saying that geocentric is wrong, heliocentric is more correct model, and then the church became angry and they made him house arrest. That house arrest was on the condition that he will not work on heliocentric model anymore. 1 minute beta. एक्सक्यूज मी सर. हाँ जी. सर आप वो वापस दिखा दोगे बस. हाँ, दो I'm लाइन showing it. नोट कर. 1 minute. 1 minute. Few slides are not getting loaded, so. कॉपीड ये सिर्फ हम बेस तैयार कर रहे हैं ना रिलेटेड टू ग्रेविटेशन की हाउ द थिंग्स केम अप. In fact, if you will get time somewhere, just check out the history of electricity. That's the beautiful way of learning more about electricity. From the beginning, how it started, how they took it. ठीक है, copied everyone? यस सर. Yes, sir. Yes, sir. Okay then, 1 minute. चलो आज स्लाइड्स का काम नहीं हो रहा है. 1 मिनट. Okay, we'll take class without slides today. Okay. Now, when Galileo proposed this thing that it's a heliocentric model was there, then there was one more German scientist was there. His name was Kepler. All the scientist community, they were impressed and agreed with what Galileo has observed, and including Kepler. Kepler also, he got this thing right. What Galileo is saying is true.
and he started working on all the planets. He started observing things about the planets, and based on the observation for many years related to planets, he came out with his laws related to only related to the planets. है ना, he came out कि ये जो planets हैं, they are not just randomly revolving around the sun, they are following some synchronization, some order is what they are following. ठीक है. There was one more scientist, his name was Bragg, ठीक है, Dutch scientist, and he was making an observation related to planet and he was logging it down. वो observation क्या कर रहा था? Observation was that how much time they are taking related to one revolution, and different phases which are there. So related to planets, he was making a lot of observations and keeping a record. So Kepler got hold of these observations made by Bray, and then he came out with his laws. Those laws are famous laws. Those are Kepler's laws, 3 laws of planetary motion. Okay, note down this. Topic is Kepler 3 laws of planetary motion. First law, law of orbit. All planets Move around the sun. around the sun in elliptical orbit. ठीक है. With sun at one of the focus. चलो पहले इसको फर्स्ट लॉ को एक्सप्लोर कर लेते हैं. व्हाट एग्जैक्टली इज ट्राइंग टू से. पहले तो ये देख लेते हैं बेटा एलिप्स क्या होता है. सो व्हेन यू टॉक अबाउट सन, सॉरी सर्कल, तो सर्कल में जो डिस्टेंस है फ्रॉम अ गिवन पॉइंट इज कांस्टेंट, है ना. दैट्स व्हाट सर्कल इज. In case of ellipse, so you will take, let's say, 2 nails you have taken and there is a thread is there and you are connecting it, है ना, and you are holding your pencil at point X. Now if you will move around, the distance, joint distance from these 2 points will be constant. ठीक है. सर्कल में जैसे एक सेंटर होता है, in case of ellipse you have got 2 centers. Those centers are not called as centers but they are called as focus. So जो प्लैनेट का जो ऑर्बिट है दैट इज नॉट सर्कुलर बट एलिप्टिकल विद सन एट वन ऑफ द फोकस. ठीक है. दिस इज व्हाट द फर्स्ट लॉ इज सेइंग. ये क्लियर है, समझ में आया सबको? सो सर तो फिर दूसरा फोकस कौन सा है? बस दूसरे फोकस पे कुछ नहीं है. ठीक है. सो दिस इज अर्थ इज देयर. So when earth is revolving around the sun, at one point it will be close to the sun, at some point it will be away from the sun. ठीक है. जो ellipse है, ellipse में these are your axes are there. ठीक है. ये आप 11th में पढ़ेंगे ellipse से related. This is major axis, this is minor axis is there. सर अर्थ का जो पहले फोकस से डिस्टेंस है वही डिस्टेंस सर दूसरी तरफ दूसरे फोकस से भी हो. हाँ जी, फोकस के रिस्पेक्ट में डिस्टेंस सेम रहेगा बट फ्रॉम सन द डिस्टेंस इज चेंजिंग. ठीक है. अगर सन से जो है अगर डिस्टेंस जो है यहाँ पर दिस इज मिनिमम डिस्टेंस, दिस इज पॉइंट इज कॉल्ड एज पेरिहीलियन. और अगर ये डिस्टेंस दूर होता है देन दिस इज कॉल्ड एज एपीरियन. ठीक है. ये
कितना डिस्टॉर्टेड है उसके हिसाब से एलिप्सिटी इज डिसाइडेड। ठीक है, सो बेसिकली सर अर्थ का सर्कल दोनों इज फोकस ऑल्सो से एन सेम एग्जांपल। डिस्टेंस होगा। हाँ जी, फिर से बोलो। अर्थ का दोनों फोकस से सेम डिस्टेंस होगा। बेटा अगर ये फोकस लेंगे तो अर्थ का जो है दोनों फोकस से कंबाइंड डिस्टेंस हमेशा कांस्टेंट होगा। ठीक है, अर्थ का दोनों फोकस से कंबाइंड डिस्टेंस हमेशा कांस्टेंट होगा। if this is focus 1 and this is focus 2। ठीक है, अगर ये जो सर्कल है बेटा, इस सर्कल को आप दोनों साइड से पिचका देंगे, सो व्हाट यू विल गेट इज अ एलिप्स शेप विल बी देयर। ठीक है, जो प्लैनेट के ऑर्बिट है वो एलिप्टिकल है, बट वो एलिप्टिकल इज स्लाइटली एलिप्टिकल, है ना, नॉट वेरी मच एलिप्टिकल। सो अगर आप यहाँ पर ये देखेंगे, दिस इज वेरी एलिप्टिकल शेप इज देयर, दिस इज slightly less elliptical shape, and this is सर little bit elliptical is there। हाँ जी, सर इसे ओवल क्यों नहीं बोल सकते? बेटा ओवल इज अ जनरल नेम। ठीक है, ellipse is a oval like shape which follows a particular criteria। ओके सर। फर्स्ट लॉ क्लियर है? फर्स्ट लॉ सिंपली सेज कि प्लैनेट्स जो है वो सर्कुलर मोशन में मूव नहीं कर रहे हैं, दे आर मूविंग इन elliptical orbit। ellipse क्या होता है? ellipse is when there are, instead of one center we have got two focus and combined distance from those two focus is constant। right, clear? बस सिंपल है ना, सर्कुलर की जगह वो elliptical orbit में मूव कर रहा है। ठीक है, सेकेंड इज लॉ ऑफ कांस्टेंट एरिया। write down a line that connects a planet to the sun sweeps equal area in the plane of planet's orbit in equal interval of time। आप नोट कर लें, देन विल डिस्कस ऑन दिस। सर सन के बाद क्या लिखा है? स्वीप्स। Done. Sir, done. Done, Done, done। sir. Okay, Yes. very good। Okay, now let's see here। if I'll make ellipse, मैंने distorted ellipse बनाया है बेटा। 1 minute। ठीक है, you have got sun is here, now you have got earth is there। ठीक है, it says a line that connects the planet to the sun, so a line that connects the planet to the sun, so this is the line which is connecting, sweeps equal area in equal interval of time। तो अगर अर्थ जो है बेटा यहाँ पर है, हमारा E1 पे है, आफ्टर 1 मंथ अर्थ जो है वो यहाँ पर होगा, E2 पे अर्थ होगी। एग्री? तो यहाँ पर कुछ एरिया उसने स्वीप आउट किया है, दिस एरिया इज A1। नाउ सेम उसमें अगर मैं अर्थ की पोजीशन यहाँ पर ले रहा हूँ, तो यहाँ पर ये E3 है, आफ्टर 1 मंथ इट विल बी एट पॉइंट E4। ठीक है, एंड द एरिया विच अर्थ विल स्वीप आउट will be exactly same as A1। This is A2, you will say A1 is equals to A2।
दैट इज सेकेंड लॉ। नाइन्थ में ये एक सिर्फ इंट्रोडक्शन है, एनसीईआरटी में जो बॉक्सेस होते हैं उन बॉक्सेस में केपलर लॉ इज मेंशन, इनका एक्चुअल यूसेज न्यूमेरिकल्स दोज विल बी इन क्लास 11, है ना, बट बेसिक्स आपको पता होने चाहिए व्हाट एग्जैक्टली इट्स ट्राइंग टू से। Sir, can you re-explain this? कम अगेन। Sir, can you re-explain this? ओके, आई विल एक्सप्लेन दिस। मैं इसको थोड़ा और बेटर वे में एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। ये आपका बेटा अर्थ ऑर्बिट है ना, दिस इज सन इज देयर, ठीक है। अगर आप देखेंगे तो लेट्स से इफ आई टॉक अबाउट, अगर हमने फुल ईयर को इक्वल मंथ्स में डिवाइड कर दिया, है ना, 31 डेज ना लेके आई एम टेकिंग ईच मंथ इज लेट्स से हैविंग 30.5 डेज। सो अर्थ जो है वो पूरे इसका जो राउंड है वो कितने उसमें लगाएगी, 1 ईयर में लगा रही है। सो वो लेट्स से यहाँ से स्टार्ट किया था, आफ्टर 1 मंथ इट इज हियर, आफ्टर सेकेंड मंथ, थर्ड मंथ, फोर्थ, 1 मिनट, दिस इज थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ। यहाँ तक क्लियर है आपको? ठीक है। ये जितने भी Yes, sir. एरियाज आ रहे हैं ना, ये जो ब्लू एरिया है, दिस ब्लू एरिया विल बी इक्वल टू द पिंक एरिया, है ना, दिस विल बी इक्वल टू द येलो एरिया, ठीक है। अभी समझ में आ रहा है आपको? ऑल दिस एरिया स्वेप्ट विल बी इक्वल, क्योंकि इक्वल एरिया स्वेप्ट करना है तो यहाँ पर आप देखेंगे फ्रॉम पोजीशन 0 to 1 जो अर्थ ने डिस्टेंस ट्रेवल किया है वो ज्यादा होगा, क्योंकि सन जो है वो पास में है, तो अगर सेम एरिया उसको स्वैप करना है तो इट्स मूविंग फास्टर, और यहाँ पर 5 to 6 में इट्स मूविंग स्लोअर, because the area now has to be covered, has to be exactly same, so it has to move slower, ठीक है। अगर ब्लू एरिया और येलो एरिया बेटा सेम है, then can you say that the length AB and length CD, I will say that AB is more than CD, ठीक है। अगर AB जो है CD से more है, that means that here Earth is moving faster, ठीक है। Can I say this point is called perihelion? Perihelion, Earth moves faster, and aphelion, Earth moves slower. सर पेरीहिलियन और एपीहिलियन का मतलब क्या होगा? आपने लेट ज्वाइन किया है। Perihelion is point closer to the sun, aphelion is point away from the sun. ओके ठीक सर। है। This is to sweep equal areas. दिस वाज सेकेंड लॉ एंड थर्ड लॉ, है ना, ये दो लॉस थे जिन्होंने न्यूटन के दिमाग में घंटी बजाई थी, है ना। एप्पल फॉलिंग डाउन दैट इज जस्ट अ स्टोरी, बट अदरवाइज इन दो लॉस ने न्यूटन के दिमाग में घंटी बजाई थी कि हाउ दिस इज हैपनिंग, यू नो, दैट इट्स स्वीपिंग द इक्वल एरिया, हाउ ही इज मैनेजिंग इट, दे आर नॉट हैविंग एनी ब्रेन ना, अर्थ के पास अपना कोई दिमाग थोड़ी ना है, then definitely there must be some other order or some other reason, some other law which the planets are following. कौन सा लॉ है जो डिसाइड कर रहा है कि बेटा अब स्पीड बढ़ा लो, है ना, अब स्पीड कम कर लो, तो कुछ तो होगा। तो बिफोर you know Kepler's law, it was always taken as, you know, god of hand of god, you know, everything in this world is moving because of hand of god. So that hand of god theory was proven wrong by Newton, ठीक है। अभी केपलर सेकंड लॉ किया है, विल सी द थर्ड लॉ ऑफ केपलर एंड देन विल कम टू द न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। Sir, हाँ जी। line joining to the other focus will also sweep equal area.
हाँ जी बिल्कुल। नहीं, अदर पॉइंट पे इक्वल एरिया स्वीप नहीं होगा बेटा, ठीक है। क्यों नहीं होगा? क्योंकि आपका यहाँ पर जो है अदर पॉइंट से अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर हो गया ना ये, तो अदर्स पॉइंट में यहाँ पर ये एरिया की बात कर रहे हैं हम। अब ये एरिया तो डेफिनेटली कम है। 1 मंथ का टाइम पीरियड में बात करेंगे तो 1 मंथ में अर्थ 5 to 6 गया है, और ये एरिया स्वीप होगा अदर फोकस पॉइंट से। और यहाँ पर 0 to उसमें ये वाला एरिया था, ठीक है। तो ये इक्वल एरिया स्वीप करने का जो है वो ओनली विद रिस्पेक्ट टू सन है, ठीक है। दूसरे फोकस पॉइंट का यहाँ पर कोई काम नहीं है, ठीक है। सर ए बी सी डी से बड़ा हुआ ये समझ नहीं आया। अगर एरिया इक्वल करा है तो फिर वो बड़ा हाँ क्यों है जी, ए बी सी डी? क्योंकि बेटा देखो, जो कर्व है सीडी वाला वो सेंटर से दूर है ना। देखो मैं अगर इसी को आपको एक सर्कल के फॉर्म में दिखाऊं, ठीक है। मान लो यहां से अगर मैं देख रहा हूं तो आपका 1 मंथ, अगर ये मैं इक्वल ले लूं लेंथ, तो ये इक्वल हो गया एरिया। एग्रीड ऑन दिस? यस सर। अगर एरिया इक्वल है तो ये आपका ए बी एंड सी डी विल बी इक्वल। बट अगर मैंने ये सेंटर को अगर थोड़ा सा यहां पर शिफ्ट कर दिया, ठीक है, अब मैं अगर इसको ज्वाइन कर रहा हूं, ए बी का एरिया तो कम हो गया यस सर। और सी डी का एरिया ज्यादा हो गया। यस सर। अभी तो आपका ए बी इज इक्वल टू सी डी था, बट जैसे ही मैंने फोकस में है ना, फोकस है हमारा एलिप्स में, फोकस की बात करते हैं, तो सी डी आप देखोगे सी डी ने ज्यादा एरिया स्वीप कर रखा है। तो यहाँ पर जो सी डैश आएगा जहां पर इक्वल एरिया होगा, दिस विल बी सी डैश डी। तो एलिप्स में ये जो आपका इक्वल एरिया स्वीप कर रहा है सी डैश डी, उसकी लेंथ अच्छा कम है। सर, वो ए बी वाले के एरिया को इक्वल करने के लिए उसको सी डी को कम कर दिया। हाँ जी, ओके सर। ठीक है। थर्ड लॉ पर मूव करें। यस सर। So please wait. यू सेइंग समथिंग? So 1 second, sir. ओके। So please show the above part. ऊपर वाला कौन सा पार्ट मिस हो गया बेटा? Sir, above. ओके, आपको ये सारी चीजें हैंडआउट में मिल जाएंगी, है ना। बट क्लियरिटी होनी चाहिए कि कैसे काम हो रहे हैं। द रेशियो ऑफ द एवरेज डिस्टेंस फ्रॉम द सन क्यूब्ड टू द पीरियड squared, time period squared, is constant for all planets. Okay, Sir, what is the name of this law? that's there is no name for it, you know, just Kepler's third law, or you can say law of constant is there, but not that सर form. हार्मोनिक लॉ। हाँ जी, सर हार्मोनिक लॉ। हार्मोनिक लॉ और लॉ ऑफ कांस्टेंट। इसका मीनिंग समझते हैं क्या बोल रहा है ये। सर व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द कांस्टेंट? बेटा वैल्यू ऑफ कांस्टेंट इज डिपेंडिंग ऑन आपने आर और टी की क्या यूनिट्स ली है ना, उस पे डिपेंड करेगा। बट इट सेज आपने अगर रेशो ली है तो वो रेशो जो है सेम होगी सब प्लैनेट्स के लिए, प्रोवाइडेड आपने आर और टी की यूनिट सेम ली है। ओके सर। ठीक है,
चलो अब इसी पे देखते हैं। ये आपका बेटा यहाँ पर सन है, ठीक है, एंड दिस इज योर लेट्स से अर्थ इज देयर। हाउ मच इज द डिस्टेंस बिटवीन देम? R. One astronomical unit. 1 astronomical unit. Impressive. This is called 1 astronomical unit, and this is equals to how many kilometers? Anyone? No. 1.5 into 10 raised to power 8 kilometers. ठीक है, that is 15 crores kilometer, or you can say 150 million kilometer. ठीक है, now Astronomical unit और the sun की बीच की distance होती है। हाँ जी, 1 astronomical unit is distance between earth and sun, that's counted as 1 astronomical unit, है ना। आपको अगर distance measure करना है in the solar system, तो अगर आप किलोमीटर्स की बात करेंगे तो आप बिलियंस की बात कर रहे हैं ना, मिलियन किलोमीटर, बिलियन किलोमीटर। तो किलोमीटर एक बहुत छोटी यूनिट हो गई टू मेजर द डिस्टेंस इन सोलर सिस्टम। बट अगर आप लाइट ईयर यूज कर रहे हैं तो डिस्टेंस आएगा 0.00032 light years. Now light year is very big unit to measure distance in solar system. So solar system में अगर आपको distance measure करना है, then you use the unit astronomical unit. That's distance between sun and earth. तो solar system या फिर आप surrounding solar system की अगर बात करेंगे तो you always use astronomical unit. If you are talking about distance between the stars, then you use light years. Distance on earth you use kilometers. ठीक है, आगे करें। Okay, let's say we have found a planet. ठीक है, हमने एक planet X find किया है. This is planet X is there, and now you can't measure the distance of this planet X. आपके पास कोई इंची टेप तो है नहीं जिससे आप जो है planet X का जो है distance measure करेंगे, ठीक है। तो you are using this Kepler's law to measure it, है ना। आप क्या ऑब्जर्व कर सकते हैं? आप ऑफ कोर्स ये मेजर कर सकते हैं कि इसको कितने ईयर्स लग रहे हैं टू मेक वन रेवोल्यूशन अराउंड द सन, ठीक है। वो ईयर्स कैसे आप फाइंड करेंगे? आपके पास यहाँ पर डिफरेंट स्टार्स हैं, ठीक है। तो ये स्टार ए है। सो व्हेन दिस इज रिवॉल्विंग अराउंड, ये पूरा रिवॉल्व करके आएगा, देन देयर विल बी अ टाइम व्हेन दिस इज कमिंग हियर एंड द स्टार ए व्हिच इज फार अवे एंड दिस प्लैनेट विल बिकम इन लाइन, ठीक है। मान लो अर्थ अगर यहाँ पर भी है या यहाँ पर भी है, यहाँ पर है, कहीं पर भी है अर्थ, ठीक है, बिकॉज दिस प्लैनेट इज फार अवे, ठीक है। They can make out कि okay this has completed one revolution, you know, not within our scope, but they use star parallax to make out if they have completed the revolution. Now they have found it has completed revolution, let's say in 8 years. Question is how far is the planet from the earth? Planet earth से कितना दूर है? तो आप क्या यूज करेंगे? r cube by t square constant है, तो r cube आप पहले अर्थ के लिए लेंगे। अर्थ का r क्यूब कितना है बेटा? r कितना है अर्थ का? 1 AU है ना। हम ये किलोमीटर में नहीं करेंगे वरना कैलकुलेशन हमारी बहुत बढ़ जाएगी। सो दिस इज 1 AU का क्यूब, है ना। t इज ईयर्स में, अर्थ को 1 साल लगता है पूरा रिवोल्यूशन में, सो दिस इज 1 का स्क्वायर। दिस इज इक्वल्स टू हाउ फार इट इज फ्रॉम द सन, वी डोंट नो, x क्यूब upon how much time it is taking, 8 years, that is 8 square. So ये हमने लिया है r cube upon t square for earth, this is r cube upon t square for the unknown planet. So what we are getting is 1 upon 1 is x cube upon 64, and x cube is 64, x is 4, 4 क्या होगा? 4 AU. Can you tell me how far is the planet from the earth? 4 No. 3 AU. 3 This distance is 4 AU, ठीक है, out of which
This is 3 AU. So 3 AU is the answer. Sir, what is the use of that A star? नहीं उसको छोड़ दो आप, है ना, जस्ट लीव दैट थिंग, Okay, क्योंकि sir. बहुत तो डीप में जाएंगे तो फिर सोलर स्टार की सिस्टम पढ़ना वजह शुरू कर देंगे। स्टार की वजह से हमें ये पता चल रहा है ना कि वो उसने एक पूरा रेवोल्यूशन खत्म करा है। हाँ, वो रेफरेंस लेते हैं ना, बैकग्राउंड रेफरेंस कि उसने रेवोल्यूशन कंप्लीट किया है या नहीं। ठीक है, आगे करें इसमें। सर थर्ड लॉ हर प्लैनेट के लिए सेम है। हाँ जी, हर प्लेनेट के लिए सेम है। ठीक है, अगर थर्ड लॉ आप देखेंगे, मैं आपको फिगर्स दे रहा हूँ, है ना, कैलकुलेशन करके देख लेते हैं हम। जो अर्थ है, ठीक है, अर्थ इज डिस्टेंस in millions of kilometers, so this is 150 million kilometer, and period of revolution it is 1 year. ठीक है, now let's see for Neptune. चलो इंटरनेट से निकालो फटाफट, बताओ मुझे नेपच्यून का डिस्टेंस कितना है अर्थ से, या फिर आप पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन निकाल सकते हैं कितना है, whatever it's available. 2.7 billion miles. How much? सर 4.3 बिलियन किलोमीटर। 4.3 बिलियन। ठीक है, इस 4.3 बिलियन को हम मिलियन में कन्वर्ट करें तो 4300 मिलियन 4.3325 है ना। अगर मैं यहाँ पर देखूं तो ये कितना टाइम्स हो गया, ये 4300 को अगर मैं 4500 कर लूं तो ज्यादा चेंज तो नहीं है, ज्यादा इश्यू तो नहीं है ना, थोड़ा सा ही ऊपर किया हमने। ठीक है, तो लेट्स सी हियर, अगर अर्थ का डिस्टेंस जो है ये सन से, सन का डिस्टेंस हो जाएगा फिर 4.5 बिलियन सन का डिस्टेंस के आसपास। ये अर्थ से डिस्टेंस था 4.3 बिलियन। यस सर। अच्छा चलो फिर 4500 आ गया, फिर तो और अच्छा है। सो अर्थ का डिस्टेंस जो है वो 1 AU है, और नेपच्यून का डिस्टेंस कितना है सन से, 30 AU। 30 AU। ठीक है, चलो फॉर्मूला लगाते हैं टू फाइंड पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन। ठीक है, पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन के लिए फॉर्मूला लगाते हैं, तो वी हैव गॉट r³ is r³ r³ is 1 upon t², अर्थ का is 1, r³ is 30² upon t²। ठीक है, so t² is sorry 30 हाँ जी, t² is 30³, 30³ is 27000, t is square root of 27000। ठीक है, जो डबल होगा वो बाहर आ जाएगा, so this comes out, so this is 10√270। ठीक है, रूट ऑफ 256 कितना होता है, 16, एंड रूट ऑफ 289 70। तो रूट ऑफ 270 कितना लेंगे हम, 16.5। ठीक है, so this is 165 years। ठीक है, चेक करो इंटरनेट पर नेपच्यून का पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन। Yes, sir. Sir, कितना एग्जैक्ट, सर यही है, यही है? 165। वेरी गुड। ठीक है, थर्ड लॉ समझ में आया सबको, नोट डाउन कर लो कैलकुलेशन। सर हाँ जी, सर साइंटिस्ट ने 30 AU नेपट्यून की डिस्टेंस सन से कैसे निकाली होगी कि सर इतनी ना हेलो, ये उल्टा हुआ था बेटा, उन्होंने सन का रेवोल्यूशन पीरियड पहले निकाला और फिर बेस्ड ऑन द फॉर्मूला दे कैलकुलेट द डिस्टेंस। ठीक है सर सन कैसे Okay. किसके आसपास रिवॉल्व करेगा, तो वो उन्होंने कैसे निकाला। ओके बेटा, नाउ इट वाज इन 20th सेंचुरी है ना, दे फाउंड आउट कि जो स्टार्स हैं, ठीक है, उन स्टार्स का डिस्टेंस कितना है, कितनी दूरी पर है, या यूनिवर्स एक्सपेंड कर रहा है, तो ये सब कैसे फाइंड किया है ना, जो नियरेस्ट स्टार है वो कितनी दूर है, हाउ दे कैलकुलेटेड इट।
तो ये आप क्लास 12th में पढ़ेंगे, दैट इज डॉपलर इफेक्ट इज देयर। जैसे साउंड में डॉपलर इफेक्ट होता है वैसे ही लाइट में डॉपलर इफेक्ट होता है, दैट्स कॉल्ड एज फिनोमेना इज कॉल्ड एज रेड शिफ्ट। सो यू कैन स्पेंड सम टाइम गूगल इट, यूट्यूब पर देखें रेड शिफ्ट क्या होता है या डॉपलर इफेक्ट क्या होता है। ओके सर। गुड है ना, यू हैव सो मेनी क्वेश्चंस, क्वेरीज आर देयर, बट all the questions can't be answered here, है ना। spend some time, in fact if you find some good videos please share it on the group। चलो जी, थर्ड लॉ क्लियर हो गया है। नाउ लेट्स मूव टू न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, न्यूटन, इनफैक्ट देयर वाज अ वर्ल्ड वाइड voting was there among the scientist community and they put Newton as the greatest scientist the world has ever seen। And Newton is more known for law of gravitation, but his work in calculus is what is being taken as, you know, out of league। जो आइंस्टाइन ने प्रपोज किया था थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, तो वो अपने टाइम से उसने, you know, it's like 50 years ahead he has proposed it, and the calculus which Newton has invented, that was 200 years before time। सर हम लोग कैलकुलस मतलब हमारे सिलेबस से है या नहीं है, मतलब 10th 11th में? बेटा कैलकुलस 12th में आएगा। ओके सर। जब आप 12th में कैलकुलस पढ़ेंगे, है ना, आप उसमें दिमाग खर्ची करेंगे, फिर यही कॉलेज में आएगा। वो कैलकुलस न्यूटन ने जब वो 18-19 इयर्स का था तब उसने इन्वेंट किया था। क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए बहुत दिमाग लगता है, बट क्वेश्चन बनाने के लिए उससे 100 टाइम्स ज्यादा दिमाग चाहिए। ओके, चलो, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन बहुत ही इंटरेस्टिंग लॉ है। ठीक है, इसको न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को जो है लेटर ऑन इट वाज मॉडिफाइड एज न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, बिकॉज इट्स एप्लीकेबल इन द फुल यूनिवर्स। ठीक है, न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इज सिंपल वर्ड में अगर हम बोलेंगे, इट सेड इफ यू आर टेकिंग एनी हेवनली बॉडी, ठीक है, एनी बॉडी विच इज हैविंग सम मास, सो लेट्स से इफ आई एम टॉकिंग अबाउट एडविक, है ना, हमने एडविक को लिया, तो एडविक इज हैविंग सम मास, ठीक है, हिज मास इज 60 kg and we are taking Apurv mass is, okay, Apurv mass is 70 kg। Because both of them are having mass, if you will leave them in space, then in space they will pull each other। कैसे पुल करेंगे? मैजिकली पुल करेंगे, है ना। and this pulling force is what is called as gravitational force। when you are pulling something because of your mass, ठीक है, and you are not pulling something, actually both the masses are pulling each other, and that pulling is because of their own masses, then that force is called as gravitational force। ठीक है, सर स्पेस में कैसे वैलिड होगा? कैसे वैलिड मतलब? सर स्पेस में क्यों पुल करेंगे? यस सर, स्पेस में मतलब उन दोनों के अंदर ग्रेविटी थोड़ी ना है जो एक दूसरे को खींच रही है। अगर स्पेस में पुल कर रहे हैं तो ग्रेविटी नहीं है। जैसे कि आप कह रहे हो कि वो अपने मासेस की वजह से एक दूसरे को पुल कर रहे हैं, पर ऐसा उनके अंदर ऐसा स्पेशल क्या है जो एक दूसरे को पुल कर रहे हैं वो? वेरी गुड क्वेश्चन। ठीक है, तो बेटा यूजुअली ना देखो, जो लास्ट ईयर थे स्टूडेंट्स, तो मैंने उनके साथ जो है पूरी एक क्लास ली हुई है ना, इंट्रोडक्शन और 9, तो उसमें हमने बहुत अच्छे से पूरा डिस्कस किया था। सो आई विल डिस्कस दिस अगेन नाउ विद ऑल ऑफ यू। ठीक है, कुछ भी जरा सा भी डाउट हो जस्ट आस्क मी। ओके,
इनके अंदर स्पेशल क्या है? तो दैट स्पेशल थिंग इज, अगर आप बात करेंगे मैग्नेट की, तो मैग्नेट में ऐसा क्या स्पेशल है? दोनों एक दूसरे को पुल करते हैं। मैग्नेट आप स्पेस में ले जाओगे तब भी एक दूसरे को पुल करेंगे, ठीक है? तो ये जो फोर्स है, इसका रीजन क्या है? वो बहुत बड़ी मिस्ट्री है कि भाई मास है तो आप मास से जो है एक दूसरे को पुल कैसे कर रहे हैं? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड द ग्रेविटेशनल फोर्स? दैट्स अननोन। बहुत सारी थियोरीज है ना? थियोरीज में सर क्या इनके कोई प्रूफ नहीं है? ना 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 ना, प्रूफ तो है बट रीजन नहीं है। प्रूफ है कि एग्जिस्ट करता है फोर्स, बट क्यों करता है वो रीजन इज अ बिग क्वेश्चन मार्क, ठीक है? देखो, वन ऑफ द थ्योरी विच सेज कि ग्रेविटेशनल फोर्स कैसे एग्जिस्ट करता है, उस थ्योरी में दे से कि अगर आपने मान लो एक चद्दर ली है बेटा, ठीक है, और उस चद्दर में आपने बीच में एक मास रखा, तो ये चद्दर जो है थोड़ा सा क्या होगा? दिस शीट विल सिंक। एग्रीड ऑन दिस? ये शीट थोड़ा सा सिंक कर जाएगी, और ये जो सिंक कर जाएगी तो इसमें आपने अगर यहाँ पर कोई और अगर एक मास है ना, तो दिस मास विल स्लोली मूव फॉल टुवर्ड्स द दिस बिगर मास, राइट? दे से दिस थिंग इज, यू नो, जो ग्रेविटी, जो मास है, दैट बेंड्स द स्पेस एंड टाइम, और उस वजह से दे अट्रैक्ट ईच अदर, ठीक है? अगेन लेट मी टेल यू, ये वाला पार्ट जो है, ये आप जब पीएचडी करेंगे ना तो उसमें आएगा कि ग्रेविटेशनल फोर्स क्यों एग्जिस्ट करता है ना? पीएचडी से पहले नहीं आएगा, डोंट वरी। बट ये चीज ट्रू है, यही चीज न्यूटन ने बोली थी कि पूरे यूनिवर्स में, ठीक है, अगर किसी चीज, दो चीजों के बीच में मास है, सो दे विल अट्रैक्ट ईच अदर, वो एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाएंगे। तो स्पेस और अर्थ दोनों में एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे? स्पेस और अर्थ, हाँ जी बिल्कुल। नाउ थिंग इज, दो छोटी छोटी सी है ना, निनो सी मैग्नेट, निनो मतलब बहुत छोटी सी, नैनो मैग्नेट, ठीक है, क्या वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगी? हाँ जी बिल्कुल करेंगी। बट अगर मैंने उन दोनों मैग्नेट को एक बड़ी मैग्नेट पर रख दिया, क्या अब ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगी? अट्रैक्ट तो करेंगी, बट इनकी इतनी औकात ही नहीं है कि ये उस बड़ी मैग्नेट पर मूव कर सकें। ये जो आपने कहा अभी, लाइक वो बड़ी, जैसे उसने एक बोला कि अर्थ पे हम ट्रैक कर सकते हैं, तो सर कभी मैम सर हमने बचपन में कभी एक ऐसा एक्सपेरिमेंट करा है कि हम दोनों जो अपने फिंगर्स होते हैं उनको अलग अलग रखते हैं, बट अपने आप थोड़ी टाइम बाद बिना मूवमेंट के वो अपने आप साथ में आ जाती हैं। तो ना ना ना, वो तो बेटा आपके जो मसल्स हैं वो थोड़ी देर में टायर्ड होके रिलैक्स हो जाती हैं, इसलिए फिंगर्स पास में आ जाती हैं, ठीक है? लेकिन आपने मान लो 1 kg के दो वेट लिए, उन दोनों वेट्स को आप टेबल पे रखो एट अ डिस्टेंस ऑफ ओनली 1 सेंटीमीटर, तो ऐसा नहीं होगा कि ये जो वेट आपने जो टेबल पर रखे हैं, ये वेट जो है आफ्टर 1 वीक ऑफ वेकेशंस व्हेन यू कम यू फाइंड कि ये आपस में मिल गए हैं, ठीक है? ऐसा नहीं होगा, ठीक है? नहीं तो कोई अगर 1 ईयर की वेकेशंस के बाद लेट्स से इज कमिंग बैक होम, ही विल फाइंड कि वो सारे फर्नीचर, टीवी, सब कुछ आपस में जंबल अप होके सेंटर में आ गए हैं, ठीक है? वो जंबल अप क्यों नहीं हो रहे हैं, सेंटर में क्यों नहीं आ रहे हैं? वन रीजन, ग्रेविटेशनल फोर्स वी विल सी इज वेरी 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 वीक फोर्स, ठीक है? इफ द मास इज लेस, सिग्निफिकेंट है ना, फोर्स को सिग्निफिकेंट होने के लिए मास को बहुत ज्यादा होना पड़ेगा। तो ये अगर हमने एडविक और दूसरा किसको लिया था हमने, अपूर्व, अगर इन दोनों को अगर हमने स्पेस में रखा है, तो बिलीव मी दे विल नॉट किस ईच अदर फॉर लेट्स से 3 or 4 days. It will take that much time for them to come together, provided they are at a distance of few centimeters or let's say 10 centimeter. अगर इनके बीच में डिस्टेंस जो है 1 मीटर हो गया, they will take maybe about a month to meet each other because that force is very very weak force, ठीक है? And that force decreases if the distance between them is increasing, ठीक है? And this force will remain there even if you will put a steel plate between them or you put
nothing like in space, or you put air between them, or you put water between them, the force will not change even a bit. इनके बीच में आप कुछ भी बैरियर लगाएं, इनके बीच में आप कुछ भी रखें, जो फोर्स है वो तब भी उतना ही वैलिड रहेगा. ठीक है, फोर्स इज नॉट डिपेंडेंट अपॉन द मीडियम इन बिटवीन देम. Sir, do non-living things also attract themselves? Come again? Sir, do non-living things also attract themselves? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल. हेलो, ये कोई पर्सनल अट्रैक्शन थोड़ी ना हो रहा है यहाँ पर. ये अट्रैक्शन बिकॉज ऑफ मास है भाई. ठीक है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट फिजिकल अट्रैक्शन इन दिस केस. अट्रैक्शन बिकॉज ऑफ मास ओनली. तो अगर हमने एडविक को रखा और उसके सामने जो है एडविक के स्कूल बैट को रख दिया, तो दे विल अट्रैक्ट. जिस भी चीज में मास है, ऑल द मासेस विल अट्रैक्ट ईच अदर. ठीक है, and this force of attraction between the masses is what is governing this full universe. पूरे यूनिवर्स में जो मूवमेंट्स हो रही हैं, that's because they are attracting each other. सर ये 60 and 70 kg वेट नहीं है, ये मास है. अच्छा, अभी 9th की फिजिक्स के बाद जो है ना, विद इन द फिजिक्स है ना, मास और वेट आर डिफरेंट थिंग्स. लेमन टर्म में पूछते हैं तेरा वेट कितना है ना, यू विल से द वेट इज 60 kg, बट दैट इज एक्चुअली मास, है ना. अभी आगे इसमें पढ़ेंगे हम हाउ द वेट इन फिजिक्स, वेट एंड मास आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर. सर कोई 2% जो 10 सेंटीमीटर की दूरी पे एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे आफ्टर सम टाइम? नॉट आफ्टर सम टाइम्स. Every moment they are pulling each other because of their force of gravitation. जैसे मैग्नेट में नॉर्थ पोल और साउथ पोल एक दूसरे को पुल करते हैं, वैसे ही एनीथिंग विद टू मासेस विल पुल ईच अदर. अगर आपने स्पेस में दो मैग्नेट रखी हैं, ये नॉर्थ है और ये साउथ है. ठीक है, नाउ दे विल हैव 4 टाइप्स ऑफ फोर्सेस आर देयर. ठीक है, ग्रुप पर एडविक एंड लेट्स से वन मोर अभिराज, है ना, आप पोस्ट करेंगे. ठीक है, आई वांट टू नो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ फोर्सेस. व्हाट आर दोस 4 टाइप्स ऑफ फोर्सेस? वन ऑफ द फोर्स इज ग्रेविटेशन, व्हिच इज वीकेस्ट अमंग देम. अनदर फोर्स इज, चलो बताओ, मुझे कोई बताएगा, व्हिच इज द अदर फोर्स? फ्रिक्शनल, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. ना फ्रिक्शनल फोर्स, फ्रिक्शनल ना, ये क्लास 8 इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. सेंट्रीपेटल फोर्स. चलो ग्रुप पर पोस्ट करेंगे. इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक फोर्स एक होता है, दैट्स कॉल्ड एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स. ठीक है, देन देयर इज अ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स इज देयर, देन देयर इज अ वीक न्यूक्लियर फोर्स इज देयर. ठीक है, सो इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेट, दे आर सेम फिनोमिना, है ना. क्लास 12th आधा जो फिजिक्स है आपकी, 60% of physics, that is on electromagnetism, where you will study कि how electricity and magnetism are same thing. जो आपका इलेक्ट्रिक जनरेटर्स जो हैं, जो इलेक्ट्रिसिटी बना रहे हैं, दे आर मेकिंग बिकॉज ऑफ मैग्नेटिज्म. और जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मैग्नेट्स होती है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स होती हैं, दोज वर्क्स बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. ठीक है, चलो लेट्स कम बैक टू द ग्रेविटेशन नाउ. सो एनीथिंग एंड एवरीथिंग व्हिच हैज मास विल अट्रैक्ट अगर हम दो मैग्नेट रखेंगे, तो अगर हम 2 मैग्नेट रखेंगे दोनों नॉर्थ एंड नॉर्थ, तो वो अट्रैक्ट तो कर ही नहीं सकते, तो फिर हाँ जी, वो रिपेल करेंगे. तो बेटा ये नॉर्थ एंड नॉर्थ, ये रिपेल कर रहे हैं मैग्नेटिक फोर्स से, और ये अट्रैक्ट कर रहे हैं ग्रेविटेशन फोर्स से. बट ग्रेविटेशन फोर्स इज वेरी वेरी लेस, एंड thus they will eventually end up repelling each other. और यहीं पर आपने मान लो बड़ी सी अर्थ ले ली, है ना, और अर्थ का ये नॉर्थ पोल कर दिया, ये साउथ पोल कर दिया, और यहाँ पर आपने मून ले लिया, है ना, मून का ये आपने नॉर्थ कर दिया, ये साउथ कर दिया. अब अर्थ और मून जो है, दोज आर वेरी वीक मैग्नेट. ठीक है, तो वीक मैग्नेट, मैग्नेटिज्म में दे विल रिपेल ईच अदर, बट दे हैव गॉट बिग मास, सो दे विल हैव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. रिपल्शन किससे हो रहा है? रिपल्शन इज ऑफ magnet, which in this case will be weak, and attraction, gravitation जो हमेशा force of attraction होता है, attraction is because of gravity, which in this case is strong, and thus they will attract each other.
ठीक है, अंडरस्टूड? आज चैट बॉक्स ही नहीं खुला है। Sir, because Earth's gravity is present, which is higher than our gravitational force. That's why two objects will attract each other only in space. हाँ जी, very good. ठीक है, चलो अब ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ठीक है, डोंट वरी है ना, ये चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग है, यू लर्न लॉट ऑफ न्यू थिंग्स, और कुछ क्लियर नहीं होगा तो दैट इज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मेक श्योर दैट यू आर गेटिंग एवरीथिंग. So there are two objects are there, M1 and M2. They are separated by a distance. Distance between their centers is R. Then the force by which they will attract each other is given by formula G M1 M2 on R square. Please note कर लें इसको. Where M1 and M2, they are mass of objects in kg. R is distance between center in meter. ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ मासेस. कैपिटल जी बेसिकली न्यूटन ने प्रपोज किया था, जो फोर्स है दैट इज प्रोपोर्शनल टू m1, फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू मास 2, फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम. ये जो चीज है दिस ही डिराइव्ड फ्रॉम Kepler's third law. उसने Kepler's third law यूज किया to derive that they are inversely proportional to the square of distance between them. ठीक है सर, r distance between center क्यों है? क्या होना चाहिए आपके हिसाब से? Between center so of like mass. distance between two objects, distance between the centers of two objects. Okay. बेटा दिस इज डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ द टू ऑब्जेक्ट, है ना, जो मास है वो पर्टिकुलर पॉइंट पर लेने के हिसाब से कर रहे हैं आपके हिसाब से, वरना देखो क्या होना चाहिए था, डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स बोल रहे हो आप, है ना. तो ये मान लो ये हो गया एडविक और ये हो गया अंगद, इनके बीच में डिस्टेंस है 30 सेंटीमीटर. अब इनका डिस्टेंस बिटवीन देम में आप क्या ले रहे हैं, क्लोजेस्ट पॉइंट का डिस्टेंस. तो एडविक ने अपना हैंड ऐसे रेज किया और उसने अपनी फिंगर दिखाई, ठीक है. तो नाउ व्हाट विल हैपन, नाउ दिस डिस्टेंस इफ यू विल टेक एज लाइक लेट्स से 1 सेंटीमीटर, देन मैजिकली नाउ द अंगद इज गेटिंग अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द एडविक, है ना, दैट विल बी रॉन्ग. सो डिस्टेंस इज नॉट बिटवीन द सरफेस, डिस्टेंस इज बिटवीन द सेंटर ऑफ द ऑब्जेक्ट्स. ठीक है, डिस्टेंस ये वाला नहीं लेंगे, दिस इज नॉट द आर यू विल टेक. एग्रीड? आगे करें. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay, through various calculation Newton's found the value of G. This G is gravitational constant. सर, इसमें जो हम डिस्टेंस लेंगे सेंटर ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन द सरफेस ऑफ द ऑब्जेक्ट. No. डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर. सेंटर का मतलब होता है आपका द सेंटर फ्रॉम वेयर यू कैन से द मास एक्सिस्ट. ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मुझे अंगद का सेंटर निकालना है, ठीक है, तो मैंने अंगद को ऐसे लेटाया. अब इसके नीचे में जो है आई एम पुटिंग अ रॉड. क्या अंगद बैलेंस करेगा? नहीं, वो ऐसे गिर जाएगा. मैं रॉड अगर यहाँ लगाऊंगा तो क्या अंगद बैलेंस करेगा? हाँ, बैलेंस कर जाएगा. अगर उसके सेंटर ऑफ मास के नीचे अगर मैंने स्पॉटिंग पॉइंट लगाया तो वो बैलेंस कर जाएगा, है ना. जितना मास इधर है उतना ही मास इधर है. ठीक है, सो मैंने अगर ये एक रॉड ली है बेटा और ये एक रॉड ली है, ठीक है,
Now this is 1 meter, this is 1 meter, this is 1 meter. For calculation r जो है वो हम ये वाला लेंगे. This is the r you will take. Distance between their centers, center of mass. Understood? Hanji, please acknowledge. Yes, sir. Yes, sir. तो वो पहले जो आपने लिख रखा था जरा वो दिखा दीजिए. फिर से बोलो. सर जो आपने नोट्स दिए थे वो जरा वो दिखा दीजिए. हाँ. सर आज की क्लास की आप रिकॉर्डिंग भेज सकते हैं. ओके. थैंक यू सर. ठीक है. इस ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू जो है दैट इज 6.67 into 10 raised to power minus 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर. अगर आप कभी यूनिट भूल जाएं तो इस फॉर्मूले में यूनिट डालेंगे. फोर्स की यूनिट क्या है बेटा? न्यूटन. ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इज g, मास इज kg अपॉन r स्क्वायर है ना. r इज मीटर स्क्वायर. तो g की यूनिट क्या हो जाएगी आपका? g की यूनिट इज न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर. तो ग्रेविटेशन कांस्टेंट की हम यूनिट कैसे देखिए? m क्यूब बाय kg. m क्यूब बाय kg कैसे हुआ बेटा? तो न्यूटन को kgm लिख दिया. ना न्यूटन की यूनिट क्या है देखो. न्यूटन इज मास इनटू एक्सेलरेशन. मास इज kg, एक्सेलरेशन इज मीटर पर सेकंड स्क्वायर. ठीक है. तो इसको आप रिप्लेस करेंगे तो g की यूनिट क्या हो जाएगी? g इज kg मीटर क्यूब, सॉरी नॉट kg, kg तो कैंसिल हो गया आपका है ना. सो दिस इज मीटर क्यूब पर kg सेकंड स्क्वायर. This also is unit for g. ठीक है. दोनों वैलिड यूनिट हैं बट ये लेफ्ट वाली यूनिट जो है दिस इज व्हाट यू यूज मोर फ्रिक्वेंटली. क्लास कब तक है? 5 minutes more. हाँ जी करें आगे. So please wait 2 minutes. Okay. चलो tell me on this. अच्छा पहले तो एक चीज और क्लियर कर लेते हैं ना. बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है. दैट इज लेट्स से अगर हमने अर्थ ली है, ठीक है, और अर्थ पे माय फेवरेट एफिल टावर इज देयर and just for the experiment purpose Newton went on the top of Eiffel Tower and he jumped. He stepped out from the Eiffel Tower. Now what's going to happen? He will fall down. No. He will attract Gravitational the force towards him. हाँ जी बेटा. अब इसको जो है ना न्यूटन के लॉ के हिसाब से देखो. स्पेस में दो ऑब्जेक्ट हैं. एक ऑब्जेक्ट कौन सा है? धरती माता, और दूसरा न्यूटन. ठीक है. सो दीज टू ऑब्जेक्ट्स आर देयर ऑन द स्पेस. नाउ ओनली थिंग इज अर्थ जो है वो बहुत बड़ी है, ठीक है, और जो न्यूटन है वो बहुत छोटा सा है. सो बट दीज आर टू masses देयर इन द स्पेस. irrespective what else is there in between, they have got air or there are some other masses, doesn't matter.
दे बोथ विल अट्रैक्ट ईच अदर, दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। न्यूटन को अर्थ अट्रैक्ट कर रही है, अर्थ को न्यूटन अट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है। और ये अट्रैक्ट कर रहे हैं मतलब वो एक दूसरे को पुल कर रहे हैं। पुल और पुश इज नथिंग बट अ फोर्स। वो एक दूसरे को किस फोर्स से अट्रैक्ट करेंगे? सो दैट फोर्स विल बी जी एम फॉर न्यूटन, एम फॉर अर्थ अपॉन आर स्क्वायर। वो इस फोर्स से अट्रैक्ट करेंगे एक दूसरे को। ये बात क्लियर है? ये चीज क्लियर है सबको? ठीक है। Yes. अर्थ न्यूटन के ऊपर ये जो फोर्स लग रहा है, इस फोर्स लगने की वजह से न्यूटन किसी भी चीज पर अगर फोर्स लगता है तो वो चीज क्या करती है? मूव करती है। नहीं, मूव नहीं करती, वो चीज एक्सेलरेट करती है। उसकी स्पीड इंक्रीज या डिक्रीज होना शुरू हो जाती है। तो पे ये फोर्स लग रहा है तो न्यूटन की स्पीड जो है वो इंक्रीज होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। किस डायरेक्शन में? फोर्स की डायरेक्शन में, ठीक है। एंड न्यूटन विल स्टार्ट मूविंग टूवर्ड्स द अर्थ। न्यूटन जो है वो अर्थ पे फॉल थोड़ी ना कर रहा है, वो तो अर्थ की तरफ मूव कर रहा है विद लॉट ऑफ एक्सेलरेशन, ठीक है। फिर से देखते हैं, अगर मैंने बेटा यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट लिया है, ठीक है, इस ऑब्जेक्ट पर इसका मास m है, इस ऑब्जेक्ट पर मैंने फोर्स F लगाया है, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्ट जो है दिस इज गोइंग टू एक्सेलरेट। इक्वेशन बताओ क्या बनेगी हमारी? Force is mass into acceleration. फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है। वापस ये एक ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट का मास m है, इसके ऊपर मैंने फोर्स लगाया डाउनवर्ड पुलिंग फोर्स, ठीक है। इस फोर्स की वजह से ये नीचे एक्सेलरेट करेगा। इक्वेशन क्या बनेगी? E is equals to ma. F is equals to ma, ठीक है। ये फोर्स कौन लगा रहा है? Sir, but in this case, A will be replaced by G. ना सुन लो बेटा, प्लीज प्लीज प्लीज, जी की बात ही मत करो, मैंने अभी बात नहीं की है। अब मुझे बताओ ये फोर्स कौन लगा रहा है? अर्थ, धरती माता, है ना। और क्यों लगा रही है? ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रही है। क्या इस फोर्स को आप कैलकुलेट कर सकते हैं? हाँ जी, बिल्कुल कर सकते हैं। ये फोर्स न्यूटन ने क्या बोला, ये फोर्स किसके बराबर है? जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर। और ये किसके इक्वल हो गया? दिस इज इक्वल टू m इंटू ए। तो ये जो ऑब्जेक्ट है मास m है, ठीक है, इसका एक्सेलरेशन अगर हम देखेंगे तो m से m तो कैंसिल हो गया। ये एक्सेलरेशन, दिस एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर। ये हमने मोशन का चैप्टर, सॉरी न्यूटन लॉ ऑफ मोशन एंड ग्रेविटेशन है ना, मिक्स कर दिया अभी हमने, ठीक है। तो ये एक्सेलरेशन आया, एक्सेलरेशन किसका आया? एक ऑब्जेक्ट का। इस हमारे पुराने केस में ये ऑब्जेक्ट था न्यूटन, जिसका मास था m, जिसने एफिल टावर से स्टेप आउट किया था, छलांग मारी थी नहीं बोलेंगे, स्टेप आउट किया था। एंड देन ही इज गेटिंग एक्सेलरेटेड डाउनवर्ड। यहां तक क्लियर है? वो एक्सेलरेशन कितना होगा? वो एक्सेलरेशन होगा जी एम अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ पर ये सर हम अर्थ की भी एक्सेलरेशन फाइंड कर सकते हैं। हाँ जी बिल्कुल, 1 मिनट है ना, आई टेल यू ऑन दिस। ये जी की वैल्यू कितनी है? 6.67 into 10 raised to power minus 11। ठीक है। ये m किसका मास है? अर्थ का मास। न्यूटन का मास तो कैंसिल हो गया ना, यहाँ पर देखो, न्यूटन के मास से न्यूटन का मास कैंसिल है ना। अर्थ का मास है ये। अर्थ का मास कितना आ रहा है? 6 into 10 raised to power 24 kg। ये अर्थ का मास होता है। r इज द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स होता है r। तो ये जो है और ये जो सेंटर है ना, इसका डिस्टेंस, ये जो डिस्टेंस है एफिल टावर का, ये तो 200 मीटर है। और ये जो डिस्टेंस है, दिस डिस्टेंस इज 6400 किलोमीटर, दैट इज 64,000,000 मीटर। क्या ये 200 मीटर कुछ सिग्निफिकेंट चेंज लेके आ रहा है? इतना अप्रोक्सीमेशन तो हमने यहीं पे कर दिया है, इससे ज्यादा अप्रोक्सीमेशन यहाँ पर कर दिया हमने। तो ये 200 मीटर इज नॉट सिग्निफिकेंट, है ना, ये सिग्निफिकेंट नहीं है भाई। सिग्निफिकेंट तो मैंने बोला दिल्ली से बॉम्बे का डिस्टेंस कितना है, आपने कहा सर 1275 किलोमीटर। आई सेड नो,
आपको तो कुछ पता ही नहीं है, ये तो 1275.231 किलोमीटर है. This doesn't make difference ना, ये decimals में is hardly any difference. So this is 6.4 into 10 raised to power 3 and 2 5 6 का स्क्वायर. और इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो दिस इज एक्सीलरेशन इज 9.81 है ना. किसको? इस पूरे को कैलकुलेट करेंगे. सो दिस इज 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ठीक है. नाउ whenever in physics acceleration of an object is due to gravitational force, तो उसको हम एक अलग नाम दे रहे हैं, उसको नाम देते हैं हम g. This is g is 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. अब ये ग्रेविटेशनल फोर्स तो हर एक का अलग अलग होगा. अर्थ है तो अर्थ का अपना है, मून का अलग है ना, रेहान का अलग है, अंगद का अलग है, सबका ग्रेविटेशनल फोर्स है. तो इसको हम बोलेंगे GE, ये अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स है. GM एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ मून. G अंगद है ना. तो ऐसे जो है हम सबका ग्रेविटेशनल फोर्स लिखेंगे. नाउ फिजिक्स में ग्रेविटेशनल फोर्स जो है, मतलब जो कैलकुलेशन है वो अर्थ की सबसे ज्यादा बार होती है. तो जैसे कि लेट्स टेक GE सेम एज G. तो अगर E मेंशन नहीं है, जैसे 5 की पावर 1 में अगर 1 मेंशन नहीं है, देन यू टेक इट है ना कि पावर 1 होगा. तो अगर यहाँ पर नीचे में कुछ मेंशन नहीं है, देन यू विल टेक इट कि ये अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स की बात कर रहे हैं, है ना, एक्सीलरेशन ड्यू टू अर्थ ग्रेविटी की बात कर रहे हैं. बाकी सबके केस में नीचे में वो मेंशन होगा कि ये किस पर्टिकुलर से रिलेटेड बात कर रहे हैं. अगर नीचे कुछ मेंशन नहीं है, देन दैट इज फॉर अर्थ. हाँ जी, समझ में आया? सर एक चीज पूछनी है सर, वो आर स्क्वायर वाले में आपने 6.4 into 10 raised to the power 6 क्यों लिखा? ओके, आर क्या था? डिस्टेंस बिटवीन न्यूटन एंड अर्थ सेंटर. तो ये जो डिस्टेंस है ये कितना होगा? जो अर्थ का रेडियस है ना, प्लस जो एफिल टावर की हाइट है. यस सर. अर्थ का रेडियस है 6400 किलोमीटर, बट आर की यूनिट तो मीटर में थी, तो 6400 into 1000 मीटर. दिस इज 6.4 into 10 raised to power 6 मीटर. जो एफिल टावर की हाइट है वो इनसिग्निफिकेंट है ना, नेग्लिजिबल है कंपेरेटिव टू द रेडियस. यस सर. सर फिर G of moon will be 1.6. कैसे आया? सर क्योंकि मून की ग्रेविटी 1/6 है. हाँ जी, है ना, वो भी डिस्कस करेंगे. जब आप यही फिगर मून के पे डालेंगे तो मून की ग्रेविटी आ जाएगी, एक्सीलरेशन ड्यू टू मून्स ग्रेविटी, दैट इज 1.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ठीक है सर. जब दो ऑब्जेक्ट कोलाइड करते हैं तो सर हम जो डिस्टेंस मेजर करते हैं तो हम वो सेंटर से डिस्टेंस मेजर करते हैं. तो सर जब वो दो ऑब्जेक्ट कोलाइड करेंगे अगर, तो सर वो सेंटर के मतलब जो उनका जो डिस्टेंस है सर वो कांटेक्ट फोर्स सेंटर से मेजर क्यों नहीं होता? फिर से बोलो भाई. सर मतलब जैसे सर मैं अर्थ पे चल रहा हूँ तो सर मेरे सेंटर का डिस्टेंस और अर्थ के सेंटर का डिस्टेंस है सर, तो मतलब अर्थ और मैं कांटेक्ट में है. हाँ. तो सर इसमें हम मतलब बोलेंगे कि अर्थ और मेरे बीच का डिस्टेंस 0 मीटर है, बट ना हेलो, किसने का 0 मीटर? फिजिक्स की अगर बात करेंगे, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, तो डिस्टेंस बिटवीन यू एंड द अर्थ इज 6400 किलोमीटर. डिस्टेंस बिटवीन यू एंड अर्थ मींस डिस्टेंस बिटवीन योर सेंटर ऑफ मास एंड सेंटर ऑफ मास. ओके सर. एक्यूरेट लाइक जो हमारा सेंटर है और जो अर्थ का सेंटर है वो तो एक्यूरेट तो फिर पॉइंटों में आएगा. हाँ जी, तो बेटा वो डेसिमल्स में ही फिगर डलेंगी, बट अगर आप देखेंगे तो ये फिगर अगर आप थोड़ा सा ऊपर नीचे करेंगे, मतलब डेसिमल्स में अगर करेंगे, तो इट्स नॉट गोइंग टू मेक एनी सिग्निफिकेंट चेंज. जो अर्थ का एक्सीलरेशन ड्यू टू अर्थ ग्रेविटी है दैट इज 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ठीक है,
बट जो अगर डिस्टेंस आपने थोड़ा सा अगर अप्रोक्सीमेशन लेकर सॉल्व करते हैं तब भी ये इतना ही आएगा। एक्चुअल हो सकता है 9.81352457 होगा, और आपने अप्रोक्सीमेशन लेके किया तो आंसर आ रहा है 9.81352461। तो सर हम उसे 10 मीटर पर सेकंड क्यों लिखते हैं फिर? मतलब अगर हमने इसमें पॉइंट लिए तो फिर हम उसमें पॉइंट क्यों नहीं लेते? बेटा इसको 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आप अप्रोक्सीमेशन में लेते हैं टू मेक कैलकुलेशंस इजी। आपसे g की वैल्यू पूछी जाएगी तो 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, बट कैलकुलेशन 9.81 से मल्टीप्लाई करने की जगह 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं हम कैलकुलेशन इजी करने के लिए, बट ये आप स्टेट करते हैं फिर टेकिंग g एज 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, है ना। फिजिक्स में कॉन्सेप्ट चेक हो रहे हैं, मैथ्स की कैलकुलेशन थोड़ा ना चेक हो रही है। ओके सर। अगर आपको आज क्लास में से 50% समझ में आया है देन द जॉब इज वेल डन। टुमारो विल स्टार्ट अगेन, है ना, फ्रॉम दिस फॉर्मूला अगेन, है ना। कल हम वापस इस फॉर्मूले से स्टार्ट करेंगे एंड विल कम बैक टू दिस डेरिवेशन अगेन, एंड टुमारो वी विल सी ये लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कैसे वैलिड है। डू यू हैव पावर टू मूव अर्थ? क्या आप अर्थ को मूव कर सकते हैं? यस। हाउ यू कैन मूव अर्थ विल सी, ठीक है। सो ये जो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन है ये दोनों पर सेम एप्लीकेबल है, ठीक है। आपको धरती माता ने एक पर्टिकुलर फोर्स से नीचे खींचा तो आप भी धरती माता को उतने ही फोर्स से ऊपर खींच रहे हैं, ठीक है। बट देन व्हाट्स एक्चुअली हैपनिंग ऑन अर्थ दैट विल सी, है ना। अर्थ के साथ क्या हो रहा है वो देखेंगे हम, एंड देन विल कैलकुलेट। अर्थ का मास ज्यादा है इसलिए एक्सेलरेशन कम होगा। हाँ जी, वेरी गुड, ठीक है। विल सी टुमारो अगेन एंड विल सी अगर अर्थ का मास जो है वो 10 टाइम्स हो जाता तो अर्थ के जी पर क्या चेंज आता, या फिर अर्थ का अगर रेडियस कम होता तो अर्थ का जी कैसे चेंज हो जाता, है ना। दिस ऑल क्वेश्चंस एंड कॉन्सेप्ट्स विल सी टुमारो। सो टुमारो विल बी एन इम्पोर्टेंट क्लास। लेट्स एंड इट नाउ। Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank Bye, you, sir. sir. Thank you, sir. Bye, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Bye, sir. वेलकम, बाय बाय। थैंक यू सर सर। सर आप क्या रिकॉर्डिंग भेज दोगे? ठीक है, ओके। ओके